Hello everyone, good morning students, welcome again. This video is for 7th standard student and today I am going to give the solution of exercise part. So students, open a book and start writing. Now, test your learning. Part first, multiple choice question. Question number first, take the correct option. Question number first, light travel in a dash line. तो the correct answer is, this is a very simple question. I know कि आप सभी को पता है. The light travel in a straight line. The correct answer is straight. Now next question, wood shows dash reflection. वुड से कौन रिफ्लेक्शन शो करता है, कौन सा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन. इरेगुलर के आगे टिक कर लीजिए. इरेगुलर रिफ्लेक्शन शोज बाय वुड. Now question number third. The convex mirror form element that is virtual, erect and diminished. All of these के आगे टिक कर लीजिए. Now next question, question number 4. The image that can be obtained on a screen is real. Real के आगे टिक कर लीजिए. Real is the correct answer. Now next question, the lens used to correct short sightedness is concave lens. Concave lens के आगे टिक कर लीजिए. So next question, the rear view mirror in the car are made of. Correct answer is convex mirror. Take the correct option. Convex mirror is used in rear view mirror in car are made up of convex mirror. Now next question, question number 7. Which of these color is not present in spectrum? तो इसमें से कौन सा स्पेक्ट्रम में नहीं प्रेजेंट होता? करेक्ट आंसर इज पर्पल. Purple is not present in spectrum. Now come to the next part, fill in the blanks. Fill in the blanks number first. Light shows the phenomenon of dash propagation. So what is the correct answer? ये वाला आपको होमवर्क है, अपने आप करिए. इजी है, इसे पिछले चैप्टर में भी करवाया है, ऑलरेडी डिस्कस पार्ट है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 2. द इमेज फॉर्म बाय अ डैश मिरर इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द आंसर इज प्लेन मिरर. राइट इन योर नोटबुक. The image formed by a plane mirror is of the same size as that of the object. So student, जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक एक्सप्लेनेशन क्लास नहीं देखी है वो देख लीजिए. कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस एंड कॉनकेव मिरर. ठीक है, सबकी मैम ने अलग अलग पार्ट में वीडियो बनाई है. अभी बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया है क्लास को, मुझे पता है. आप लोग क्लास कंप्लीट करिए, उसे पूरा वॉच करके समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे नए टर्म्स हैं और सारे नए टर्म्स आपको लर्न हो जाने चाहिए. ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग वगैरह आप अपनी बुक में ही रखेंगे और इसके बाद का जो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है वो आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा. नाउ नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3. इन केस ऑफ डैश मिरर इट्स इनर सरफेस इज पॉलिश्ड. तो कौन से मिरर की इनर सरफेस पॉलिश होती है? टेल मी. द आंसर इज कॉन्वेक्स मिरर. लिख लीजिए. इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट्स इनर सरफेस इज पॉलिश्ड. नाउ नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 4. स्पेलिंग सही लिखना है आप सभी को, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करिएगा.
Dash mirror is used in floodlights. Answer is concave mirror. लिख लीजिए आंसर. Concave mirror is used in floodlights. Complete your answer. Fill in the blanks. Number 5. Dash lens is used in spectacles to treat long sightedness. Answer is convex lens. Fill it. Next, fill in the blanks. Fill in the blanks. Number 6. The splitting of white light into different color is called dispersion of light. लिख लीजिए. Write down. The splitting of light or white light into different colors is called dispersion of light. Complete your answer with the correct spelling. Now come to the next. Fill in the blanks. Reflection from a smooth surface is called. सिंपल है, रेगुलर रिफ्लेक्शन. Reflection from smooth surface is called regular reflection. Now come to the next part, true and false. True and false. Number first, light travel in a straight line. तो फर्स्ट का आंसर क्या है? ट्रू. मैंने सिर्फ टी लिखा है, पूरी स्पेलिंग लिखेंगे TRUE, ट्रू. Now next, true and false. True and false. Number second, a plane mirror produce real images. So what are the correct answer? True. Yes, plane mirror produce real images. यहाँ पे आपकी मैम ने सिर्फ टी लिखा है, पर आपको पूरी स्पेलिंग लिखनी है TRUE, ट्रू. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, अ प्लेन मिरर यूज्ड इन कैलेडोस्कोप एंड पेरिस्कोप. ट्रू. प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं ना, अगर आपका स्कूल ओपन होता तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं पेरिस्कोप जैसा, राइट. नाउ ट्रू एंड फॉल्स. नंबर 4, इन अ स्फेरिकल मिरर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ प्लेन. नो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो कर्व होती है, तो इसका क्या होगा? फॉल्स. इन स्फेरिकल मिरर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड. नाउ नेक्स्ट, कॉनकेव लेंस इज यूज्ड इन टॉर्चेस. सो लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. फिफ्थ का ट्रू है या फॉल्स है? नाउ सिक्स्थ, अ प्रिज्म सेपरेट द कलर्स एग्जिस्टिंग इन वाइट लाइट. सो सिक्स्थ का भी आप लोग बताइए, लीव अ कमेंट. नाउ 7, ऑन अ रफ सरफेस द रिफ्लेक्टर राइज. ऑन अ रफ सरफेस द रिफ्लेक्टर लाइट रेज विल बी पैलर. कैसे होते हैं? सो इसका तो फॉल्स होगा. ठीक है, फॉल्स कर लीजिए आप लास्ट का. और ये दो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए मुझे, 4 and 6, सॉरी 5 and 6. क्या होगा इसका? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, मैच द फॉलोइंग. सो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज अ property of light. Rectilinear propagation is a property of light. Band of 7 colors is a spectrum of light. Doctor head mirror, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं डॉक्टर्स. नाउ नेक्स्ट, एम्बुलेंस. एम्बुलेंस में जो अपोजिट साइड से एम्बुलेंस लिखा होता है, दैट इज अ लैटरल इन्वर्जन. प्लेन मिरर
हैव रेगुलर रिफ्लेक्शन। मैच कर लीजिए आप लोग इसे। आफ्टर दिस कम टू द नेक्स्ट पार्ट। फटाफट से अपनी कॉपी निकाल लीजिए। मैम के साथ साथ ही क्वेश्चन आंसर आप लोग करते जाइए अपनी कॉपी में, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम होंगे फाइनल्स। अगर स्कूल खुल जाते हैं, सिचुएशन सही होती है, तो एग्ज़ाम तो ऑफलाइन होंगे, और ऑफलाइन होते हैं तो आप लोग को क्या है, पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करिए, कॉपी में वर्क कंप्लीट करिए, क्योंकि आपकी कॉपी चेक होगी फिर स्कूल में, और लास्ट मोमेंट में टाइम भी नहीं रहेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। आंसर ईच इन अ फ्यू वर्ड्स ओनली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच मिरर इज यूज्ड एज अ मेकअप मिरर? Write down the question number first. Which mirror is used as a makeup mirror? Answer is concave mirror. Write down the answer, concave mirror. फटाफट से अपनी कॉपी निकाल लीजिए विदिन 20 to 25 मिनट। जितने मिनट का ये वीडियो है, बहुत ही छोटे छोटे आंसर्स है इसमें, सिंपल भी है। फटाफट आपकी कॉपी में कंप्लीट हो जाएगा मैम के साथ साथ में, ठीक है? तो फटाफट से कॉपी निकालिए और करना शुरू कर दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेम द लेंस दैट इज यूज्ड एज द रीडिंग ग्लास। Name the lens that is used as a reading glass. Answer is convex lens. Convex lens is used as a reading glass. Now come to the next question. Question number 3. कर लीजिए आप लोग इतना। Name the lens which is thicker in the middle. Write down the answer, convex lens. अभी तक आप लोग को ये सारी चीज़ें लर्न हो जानी चाहिए, और जिन भी बच्चों ने एक्सप्लेनेशन क्लास नहीं किया वो कर लीजिए फटाफट। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते जाइए, क्योंकि जनवरी एंड हो चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज प्रेजेंट इन आर आई? आइज में किस टाइप के लेंस प्रेजेंट होते हैं? राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ राइट डाउन द आंसर नंबर 4। डबल कॉन्वेक्स लेंस। In human eye, double convex lens is present. Now write down the next question. Write down the question number first. Define rectilinear propagation of light. Define rectilinear propagation of light. Write down the answer number first. An important characteristics of light, which means light travel in a straight line. Rectilinear propagation of light is an important characteristic of light, which means light travel in a straight line. Complete your answer with the correct spelling.
नाउ राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जिन बच्चों का हो गया क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए। What is meant by reflection of light? Now write down the answer number 2. The bouncing back of light after striking the surface of an object. Complete your answer with correct spelling and leave a comment in a comment box that I have done, ma'am. My work is completed. Now next question. What is lateral inversion? Write down the question number 3 and answer number 3 आपके स्क्रीन पे है। What is lateral inversion? An interesting phenomenon exhibited by a plane mirror wherein there is change of left and right side. Complete your answer with the correct spelling. Now write down the next question, question number 4. What are lenses? Write down the question number 4. What are lenses? Now write down the answer number 4. A lens is a transparent medium having one flat and one curved or both the surface curved. Complete your answer with the correct spelling. Now, come to the next part, long answer questions. जिन बच्चों का हो गया है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। Write down the first question of next part. Prove that light travel in a straight line with the help of an activity. Write down the question number first. Prove that light travel in a straight line with the help of an activity. आप अपनी बुक में प्रैक्टिकल टास्क नंबर फर्स्ट खोल लीजिए। आंसर यही होगा। पहले लिखेंगे आप गोल टू टेस्ट दैट लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। आफ्टर दैट यू राइट यू विल नीड क्या क्या चाहिए, अ कैंडल एंड अ लॉन्ग प्लास्टिक ट्यूब। देन राइट डाउन द मेथड, लिख लीजिए फटाफट कॉपी में। Write down the method. Step number first, light the candle and put it on the table.
सबसे पहले आपको क्या करना है, कैंडल लेना है, उसमें लाइट जलानी है ना। कैंडल लेकर उसको मैच स्टिक का यूज़ करके आप उसको लाइटिंग करिए एंड उसको टेबल पे सेट कर लीजिए। नाउ स्टेप नंबर 2, लुक एट द कैंडल फ्लेम थ्रू द ट्यूब। ट्यूब से कैंडल फ्लेम को देखिए। नाउ कैंडल फ्लेम को देखने के बाद स्टेप नंबर 3, नाउ बेंड दी ट्यूब एंड लुक एट द कैंडल थ्रू इट एंड ऑब्जर्व। आप अपनी ट्यूब जो है उसको थोड़ा सा बेंड कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, है ना, क्योंकि प्लास्टिक का स्ट्रॉ है ना। तो फिर आप नोटिस करेंगे क्या कि लाइट आपको नहीं नज़र आएगी, फ्लेम आपको नज़र नहीं आएगा। What happens? We find that we are able to see the candle flame through the straight tube, but we are unable to see the candle flame through the bent tube. And draw this diagram also, student. Draw this diagram. ये टेबल है, टेबल के ऊपर कैंडल है, ये फ्लेम है, और यहाँ पे ट्यूब से आप ही के बराबर स्टूडेंट नोटिस कर रहा है। नाउ यू नो आपको क्या पता चलता है कि लाइट ट्रेवल इन है स्ट्रेट लाइन। तो ये जो प्रैक्टिकल टास्क दिया है आपका पेज नंबर 153 प्रैक्टिकल टास्क नंबर 1, इसे आपको कहाँ पे करना है, अपनी कॉपी में, इन दी फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ राइट डाउन दी क्वेश्चन नंबर 2। Now write down the second question. What are regular and irregular reflection? Now write down the answer number 2. आंसर नंबर 1 आप आंसर नंबर 2 और 3 लिखने के बाद कर लीजिएगा, है ना। पहले आप लोग इतना कंप्लीट कर लीजिए। पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में आप लोग लिखिए, ऑन स्मूथ प्लेन सरफेस द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज विल बी पैरेलल आर कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। Now next slide, irregular reflection. Irregular reflections on a rough and uneven surface, the reflected light rays will scatter in all directions. Irregular reflection on a rough surface and uneven surface, the reflected light rays will scatter in all directions. Now write down the next question. Question number 3. Now question number 3 का जो पहला पार्ट है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, तो ये आपके बुक में दिया है, इसे लिख लीजिए आप लोग। Point number 1, it can be obtained on a screen, and virtual image, it cannot be obtained on a screen. Point number 2, it is always inverted and it is erect. ये सारे टर्म्स मैम एक्सप्लेन कर चुकी हैं एक्सप्लेनेशन वीडियो क्लास में, जिनमें बच्चों ने नहीं देखा है वो देख लीजिए। Point number 3, it does not show lateral inversion, it shows lateral inversion. Now write down the question number 4. Point number 4. It is formed on the same side of the mirror where the object is placed. और ये वाली इमेज वर्चुअल इमेज कहाँ पे बनती है, मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। इट इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर।
तो आप लोग को कहाँ तक, बस 4 पॉइंट तक लिख लेना है, ठीक है, पूरा नहीं लिखना है, पर 4 पॉइंट तक आप लोग कर लेंगे। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट डिफरेंशिएशन, पार्ट सेकेंड, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। Now write down the point number 2 or differentiation. Second, concave and convex mirror. Now concave mirror, answer is on your screen. Concave mirror, its outer surface is polished, or in concave mirror the position of the and nature of the image formed depends upon the position of the object. तो ये सारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है किसके, कॉनकेव मिरर के। कंप्लीट योर आंसर विद द करेक्ट स्पेलिंग। इन कॉनकेव मिरर द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। Now write down the next, कॉन्वेक्स मिरर। हो गया सभी का। नाउ कॉन्वेक्स मिरर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट्स इनर सरफेस इज पॉलिश्ड, द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही छोटी सी, एंड सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। कंप्लीट योर आंसर विद द करेक्ट स्पेलिंग। और जिन बच्चों का हो गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर नाउ। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस में। अभी हमने मिरर के बीच में डिफरेंस देखा है, हम लेंस के बीच में डिफ्रेंशिएशन देखेंगे, ठीक है। नाउ कॉनकेव लेंस क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका स्क्रीन पे। कॉनकेव लेंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इट इज थिकर एट द एजेस एंड थिनर इन द मिडल। कैसा होता है कॉनकेव लेंस, ऐसा होता है, थिनर होता है मिडल से एंड एजेस से थिकर होता है। नाउ द इमेज कैसे फॉर्म होती है कॉनकेव लेंस से, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। Now point number 2, convex lens, it is thicker in the middle and thinner at the edges। कैसा होता है convex lens, ऐसा थिक होता है मिड से और थिन होता है एजेस से। द इमेज कैसी बनाता है, रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। सो स्टूडेंट आज की क्लास यहीं पे एंड होती है, यह हो गया पूरा एक्सरसाइज सोल्यूशन आपका, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।